Here, good morning to all of you. Class 10 economics is continuing and chapter 1 development. Today's topic is human development report. Yesterday also we have dealt with human development report and already we learned about body mass index. It means that it is an indicator about the health of a person related with height and weight being compared. So BMI, body mass index, gives us the health condition, idea about the health condition of a person of different age group. For boys and for girls also, a chart is prepared according to their age, what should be their height and what should be their weight. And accordingly, with age also, the height weight ratio also gives idea about whether a person is overweight or the person is underweight. If the person is underweight, then their health is definitely questionable. If the person is overweight, that also is not a good sign. So in that way, yesterday we learned about body mass index. Today we are going to learn about the same human development report, which includes education, which includes health and income. Human development report, it includes education, it includes health, and it also includes income. So income is not the sole criteria for the development of a human being. So education is equally important and health is also important. So these are broadly the indicators, broadly the parameters with which we understand about the human development. Now here the same thing is there, only in we are adding index, human development index. Here the full form is human development index. And based on several factors, several criteria, the UN, the United Nations agency, the United Nations Development Program, it gives ranking to the countries. And from the human development index point of view, from the point of view of human development index and the rankings, we find out whether we need to improve ourselves or it is all right for all of us. So Sri Lanka, India, Myanmar, Pakistan, Nepal, and Bangladesh. These are the 4 or 5 countries, 1, 2, 3, 4, 5, 6 countries, and they are compared related to their income, national income. Gross national income, what is it? It is the money value of the total earning of the people of a particular country. India में रहने वाले जितने लोग हैं, उनका एक साल में जो भी काम किए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर, जहां भी उन्होंने काम किया, जो भी उन्होंने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए हैं, उनके मनी वैल्यू को हम जो है उसमें कन्वर्ट करके हम ग्रॉस नेशनल इनकम को जो है फाइंड आउट करते हैं. और सरप्राइजिंगली श्रीलंका इज प्लेस्ड मच अबव इंडिया. What could be the reason that in Sri Lanka the earning of the people is more, but in India the earning is less? ये तो बुक का 2017 वाले रिपोर्ट है, लेकिन हम जानते हैं 2023 में श्रीलंका बर्बाद हो गया. Last year 2022 or 23, we know that the president of Sri Lanka ran away. The people had looted their president house. They have ransacked, वो जाके लूट मार कर दिए राष्ट्रपति भवन में. रातों रात उनके राष्ट्रपति भाग गए उनके कंट्री से. तो कहीं ना कहीं ये $11,326 शायद उनके जो पैसे हैं उनके कंट्री के रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. वो हो सकता है उन्होंने कर्ज लिया हो चाइना से, हो सकता है वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF, वर्ल्ड बैंक और अलग जगह से कर्ज ले लिए और आधे रास्ते में ही उनके कंट्री ने डेवलप किया. There are many more possibilities. We do not understand, we do not learn about Sri Lankan economics, but it plays much higher as compared to India. But simultaneously, one news we already know that in Sri Lanka,
The common people had protested against the existing government policy, and they had actually attacked the president house in Colombo. And the entire country was having a lot of political tension, lot of economic unrest was also there, instability was also there. But thankfully, in India, although it shows $6,353 per year, and it is according to 2011 PPP. PPP is purchasing power parity. So I write one thing. Yeah. One is purchasing. Another one is power. Another P is parity. Three P's here, PPP, purchasing power parity. It means that if a bread is available at $1 in USA, I am again repeating, if a loaf of bread, एक bread मान लो एक bread का पैकेट USA में $1 का मिलता है, तो इंडिया में वो कितने का मिलता है? $1 इंडियन रुपीज में 80 है, 83, 84 चल रहा है। तो क्या हमको एक ब्रेड का पैकेट 84 रुपीज में मिलता है या इससे कम में मिलता है? हमको बताओ। उनका $1 मतलब हमारे रुपीज का 84 हो जाता है। क्या हम 84 रुपीज में ब्रेड खरीदते हैं या इससे कम में हमको मिलता है? हो सकता है 30 रुपीज का मिले, हो सकता है 40 रुपीज का मिले, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया में अभी तक कोई ऐसा कुछ इतना छोटा सा 1 पाउंड ब्रेड या एक स्लाइस्ड ब्रेड का पैकेट हमको नहीं लगता है कोई भी 80 रुपीज का हो। तो यहाँ पे हमको कंपेयर करना है कि इंडियन रुपीज में अगर कोई चीज सस्ता है और वो डॉलर में महंगा हो जाता है, तो हमको यहाँ पे एक कंसेप्ट लाना होगा, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो $1 में जो ब्रेड अमेरिका में मिल रहा है वो इंडिया में इंडियन करेंसी में वो और सस्ते मिल रहे हैं। तो यहाँ इंडिया का बेनिफिट है, यहाँ इंडिया के लिए पॉजिटिव है कि वो ब्रेड को कम दाम में बेच पाता है, और इंडिया के लोग भाग्यशाली है कि वो कम दाम वाले ब्रेड खा रहे हैं। वो अमेरिका में रहते तो $1 देना पड़ता, हो सकता है इंडिया में रह के वो आधे डॉलर से ही वो ब्रेड खा ले रहे हो। ये है परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि मैच करना इंडियन रुपीज की और यूएस डॉलर की परचेजिंग पावर लोगों के पास कितना है। ठीक है, ऐसे ही हमारे यहाँ मारुति कार मान लो 6 लाख रुपया का मिल जाता है। अगर वो $1,000 का भी अमेरिका में बिकता है तो समझ लो कि वो 8.5 लाख का हो गया, क्योंकि $1 वही है 84, 85 है ना, $1 का। तो अगर वो मान लो $10,000 का अगर है, हमारे यहाँ 6 लाख सुनने में लग रहा है, 6 लाख का गाड़ी हम खरीद रहे हैं, और अमेरिका का अगर डॉलर में अगर मान लो $10,000 का है, तो वो $10,000 सुनने में लग रहा है बस $10,000 है, लेकिन जैसे ही उनको इंटू 84 करते हैं तो हमको उसका प्राइस कन्वर्ट करके पता चल जाता है। तो हम कहीं ना कहीं हमारे इंडियन रुपीज पे जो लोगों के पास जो परचेजिंग पावर है वो मैच कराना जरूरी है कि कितने रुपए में इंडिया के लोग सामान खरीदते हैं या उनके डिमांड मौजूद रहता है। और यूएस डॉलर भले ही वो बहुत टॉप रेटेड करेंसी है, वर्ल्ड का लीडिंग करेंसी है, वर्ल्ड इकोनॉमी पूरा डॉलर के चढ़ने उतरने से जो है कनेक्टेड है, लेकिन उसमें हमको यही कंसेप्ट को, आइडिया को जो है तो लर्न करना है कि परचेजिंग पावर पैरिटी। तो ये जो $6,353 है, अब ये डायरेक्ट मीनिंग हम समझा रहे हैं कि $6,353 से तुम अमेरिका में अच्छे रहते कि इंडिया में ज्यादा बेटर रहते, ये क्वेश्चन अब खाली बता दो, एक आंसर खाली दे दो कि $6,000 लेके तुम यूएसए में तुम्हारे बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होते कि इंडिया में बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होते।
अनम्यूट करके बोल सकते हो। नो वन इज रिस्पॉन्डिंग। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो $6,000 अगर हमको मिल जाए तो हम तो इंडिया में बड़ी आराम से रहेंगे। इंटू 84 कर दो, उतने रुपए के बराबर का तुम्हारा स्टेटस हो जाएगा। जबकि अगर तुम $6,000 लेके अमेरिका में जाओगे तो तुमको पुअर मानेंगे, क्योंकि बाकी लोगों के पास इससे कई ज्यादा डॉलर है, उनकी इनकम इससे बहुत ज्यादा है। कितने लोगों को ये अब बात समझ में आया? थोड़ा यस नो करके कभी लिख भी दिया करो, या कभी जो है थोड़ा बहुत अनम्यूट करके बोल दिया करो। इंडिया का आ गया। खुशी और अंशु दो रिप्लाई आए हैं मेरे पास कि हमारे पास, हाँ एक और है, आ गया है, यस सर करके आ गया है। दो तीन और मेरे पास चैट में रिस्पॉन्ड किए हैं बच्चे। तो हम लोग को ये परचेजिंग पावर जो है, $6,000 से हम ज्यादा सामान इंडिया में खरीद सकते हैं। लेकिन हम अमेरिका में जाएंगे तो शायद मेरा महीना नहीं खर्चा पूरा होगा। तो $6,000 सेम अमाउंट है। $6,000 इंडिया में लगता है हम मालामाल हो गए हैं, और वही अमेरिका में चले जाएंगे तो हमको लगता है हे भगवान, 15 दिन चलेगा कि नहीं। $6,000 में 15 दिन चलेगा कि नहीं हम नहीं जानते हैं। तो ये ही सेम अमाउंट इंडिया में आने के बाद हमको परचेजिंग पावर के मामले में बेटर पोजीशन में रखता है। चलो, तो यहाँ और भी कुछ चैट आया है। देयर आर फ्यू मोर चैट। हाँ, रुचिका, यस, प्रियांशु, यस, ये लोग को ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला टेबल हम लोग देख रहे थे, पेज नंबर 13। वहां पे श्रीलंका और इंडिया के पीछे म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। अभी सेम क्वेश्चन बोल रहे हैं, यही $6,000 लेके इंडिया में ज्यादा बेटर रहोगे कि नेपाल में? नेपाल में हो सकता है जमीन सस्ता हो सकता है नेपाल में साग सब्जी सस्ता हो सकता है नेपाल में और सस्ते रेट में कार मिलता हो, डीजल के, गैस सिलेंडर के प्राइसेस और कम हो। तो इतने ही $6,000 लेके जो तुम पैसे इंडिया में दे रहे हो सकता है हमसे भी गरीब कंट्री में जाओ तो वहां के तुम अमीर कहलाओ। हो सकता है नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में जाओ तो तुम्हारे जमीन हो जाएगी, तुम्हारी अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तुम स्टार्ट कर सकते हो, वहां के लिए तुम जो है क्या ना क्या माने जाओगे। लेकिन इंडिया में जैसे ही आ जाओगे तो तुमको एकदम कॉमन पीपल की जैसा सोचेगा, बस केवल $6,000 लेके आया हो, ओनली $6,000, कुछ नहीं होगा। यही अमेरिका जाएंगे तो वो बोलेगा अरे $6,000 इतना तो हम लोग तो फूक देते हैं। So this is the comparison. This is the concept behind purchasing power parity. The same $1, how much it can purchase in Sri Lanka, how much it can purchase in Nepal, how much it can purchase in India or USA. This is the concept. So I hope you have now understood this. The same book, Human Development Index, it also indicates, besides PPP, it indicates the life expectancy. Okay. Which country is better, where you survive only up to 50 years or you can survive up to 70 years? कौन सा कंट्री तुम्हारे लिए ज्यादा सुटेबल होगा, जहां तुम केवल 50 साल जीने की उम्मीद करोगे या जहां तुम 70 इयर्स तक जीने की उम्मीद करोगे? अफ्रीका चले गए तो हो सकता है अफ्रीका में तुम्हारा चेकअप ही ना हो, तुम्हारी बीमारी ही ना पकड़ाए, और ऐसे दवा दे दे कि तुम्हारा जो है कल्याण 2 दिन में ही हो जाएगा। इंडिया में आओगे तो कम से कम चेकअप हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर का तुमको जो है लाइन और नंबर लेते लेते आधी बीमारी तुम्हारी जो है तुम्हारी जान खा जाएगी। अफ्रीका में हॉस्पिटल खाली है, डॉक्टर भी खाली है। जाओगे?
पूरा खाली है, एकदम आराम से तुम्हारा वेलकम करेंगे। बोलेगा कोई टेस्ट नहीं हुआ, कोई चेकअप नहीं हुआ, बस हम लोग मेंढक बिच्छू काटना जानते थे, इसलिए यहाँ मन का भी सर्जरी कर देते हैं। चलेगा? वहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अफ्रीका में जाओगे अपना ये मतलब इलाज कराने, चेकअप के लिए? प्रिफर्ड डेस्टिनेशन? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा कि घट जाएगा? पता चला तुम्हारा बीपी हाई हो गया, अरे बाप रे, ये है हॉस्पिटल का हालत, ये है डॉक्टर की हालत। तो इंडिया में रहेंगे तो अमेरिका वाले घबराते हैं, बाप रे इंडिया में जाएंगे चेकअप कराने, इतनी भीड़ है वहां, लाइन में खड़े खड़े ही हम लोग दम तोड़ देंगे। ये सोचो, जो हम लोग सोचते हैं अफ्रीका के बारे में, उनके मेडिकल एडवांसमेंट के बारे में, वही अमेरिका के लोग अगर इंडिया में आ गए और बीमार पड़ गए तो अपने घर में फोन कॉल में बोलता है, आई मीन इंडिया, आई डोंट नो वेदर आई विल सर्वाइव द नेक्स्ट डे और नॉट। ये क्वेश्चन है। वो पहले से ही समझ जाता है, अरे बाप रे अभी तो हम इंडिया में हैं और पता नहीं अगली सुबह हम देखेंगे कि नहीं। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिलेटेड। कहाँ तुम ज्यादा लंबी जिंदगी जी पाओगे, तालिबान में? बड़ी आराम है तालिबान में, बहुत फैसिलिटी है वहाँ। जिंदा रहने का नहीं मालूम है, लेकिन ऊपर जाने का गारंटी वो दे देते हैं। तालिबान, अगर तुम हिंदू हो, क्रिश्चियन हो और नॉन इस्लाम फेथ से हो, तो तालिबान विल बी ए वेरी प्रिफर्ड डेस्टिनेशन। पता नहीं वो अपने वहां के भी गर्ल्स को और लेडीज को जो है वो स्कूल जाने नहीं दे रहे, पढ़ने नहीं दे रहे, जॉब करने नहीं दे रहे हैं। ऐसी कंट्री के डेवलपमेंट जरूर बहुत शानदार होगी। यस और नो, डू यू एग्री विथ मी? डू यू एग्री विथ मी? क्या तालिबान प्रीफर्ड डेस्टिनेशन है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ अपने जन्म से लेके, अगर हम मान लो अपने पूरे जिंदगी काटना चाहे, या वहां पे हमें बुरे सपने ज्यादा आएंगे? वहां एक एक दिन हो सकता है महीनों बराबर लगे, फील ऐसा होने लगे। कुछ चैट में आया है, एक दो बच्चा नो करके सचिन लिख रहा है, 70 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो चाह रहे हैं। तो चलो यही सारी बातें हैं, हमको समझना है कि कौन से कंट्री, जो अमेरिका इंडिया से घबराता है, इंडिया तालिबान से घबराता है। तो ऐसे एग्जाम्पल है। और वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स, द नेम सजेस्ट, वो नहीं पढ़ना है, डिनोट्स एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन। तो इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? एवरेज एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ। चलो और एक सिंपल एग्जांपल है, एक तो यहाँ पे हम देखे हैं, चिकन दुकान में पिंजरे के अंदर में जो है बहुत सारे मुर्गी रखे हुए हैं, मुर्गा मुर्गी रखे हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे भी मुर्गे मुर्गी होंगे जो जंगल में घूम रहे होंगे, जो खुले में है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि पिंजरे वाला ज्यादा दिन जिएगा कि जो खुले में है, जंगल में है, वो ज्यादा दिन जिएगा? देखते हैं कौन रिस्पॉन्ड करता है। एकदम सिंपल एग्जांपल है कि यहाँ पे हम लोग देखे हैं, चिकन दुकान में पिंजड़े के अंदर में बहुत सारे उसमें मुर्गे मुर्गी रखा रहता है, ठूसा रहता है। वो ज्यादा उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, या जो जंगल में और खुले में और जो इधर उधर हाउस होल्ड में आसपास में कंपाउंड में दिख जाते हैं? तो एक रेस्पॉन्ड आया है, किसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी, एवरेज लेंथ ऑफ लाइफ? जंगल वाला, खुले वाला? अंशु का आंसर है खुले में जो घूम फिर रहे हैं,
क्यों, क्या होने वाला है, पिंजरे वाला चिकन का क्या होने वाला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो थोड़ा बता दो। जो पिंजरे में जो मुर्गे मुर्गी बंद है और कस्टमर लाइन से वहां आके खड़े हैं, उनका ईद मन रहा है, ठीक है, कुछ का त्योहार है, कोई पार्टी दे रहे हैं, कोई कुछ बिरयानी बना रहे हैं, और इस तरह से जो है वो दुकान में आ गए हैं। अब वो दुकानदार का, चलो एक और रिप्लाई दिख रहा है। जंगल वाला बच जाएगा, जो खुले में है वो बच जाएगा। तो यही है। अब तुमको ये आइडिया लग गया कि कोई कोई कंट्री अपने लोगों को लग रहा है कि वो चिकन के पिंजड़े में ठूस के रख दिया, उनके पूरे लाइफ पर वो कंट्रोल करते हैं, है ना। अगर तुम जीविश हो और जर्मनी में रहते हिटलर के समय में, तो तुम्हारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ह्यूमन डेवलपमेंट और तुम्हारे जितने एजुकेशन है, हेल्थ है, वो क्या होती। बताओ, अगर तुम जीविश कम्युनिटी के होते और तुम हिटलर के समय में मान लो जीविश कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तुम्हारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती कि पता नहीं, एकदम हॉरर। बस यही आइडिया देने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं कि वो हिटलर नहीं है अभी, थैंकफुली हिटलर नहीं है। चलो, कोई नॉर्थ कोरिया जाना चाहोगे? बड़ी प्यार से वो लोग जो है नॉर्थ कोरिया में जो है पालते पोसते हैं। कोई नॉर्थ कोरिया जाना चाहोगे? अरे वाह, सचिन बोल रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी वेरी लेस, खुशी भी बोल रही है वेरी लेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहां, पता नहीं। तो इस तरह के मेरे मेरे पर्पस यही है कि ये चैप्टर डेवलपमेंट है। तुम नॉर्थ कोरिया नहीं जाना चाहते हो, हिटलर के टाइम में नहीं जाना चाहते हो, और तुम तालिबान में नहीं जाना चाहते हो। तो ये सारी कंसेप्ट हमको बता रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट आखिर कितने सारे फैक्टर्स, कितने सारे हमारे पैरामीटर्स लेके होते हैं। चलो, अब जो है ये तुम लोग जो है बुक में पेज नंबर 13 देख लेना। पर कैपिटा इनकम बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, और वो जो है यहाँ परचेजिंग पावर पैरिटी को डिफाइन कर दिया है। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर फॉर ऑल कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड। इट इज आल्सो डन इन a way so that every dollar would buy the same amount of goods and services in any country. $1 would able to buy the same amount of goods and services in any country. ये है परचेजिंग पावर कंट्री का, ये पैरिटी का कंसेप्ट यहाँ लिख दिए हैं स्टेटमेंट। तो परचेसिंग पावर पैरिटी, अगर हमको $1 इंडिया में मिल जाता है तो मेरा लॉटरी लग गया, समझ लो। $1 सुनने में लग रहा है एक ही डॉलर है, जो कि अमेरिका में $1 मतलब 1 यूनिट है। $1 इंडिया में 84 यूनिट है। तो हम 84 टाइम्स हम वहां इंडिया में बेटर ऑफ है $1 लेके। यही है परचेजिंग पावर पैरिटी का कंसेप्ट। पेज नंबर 14 में आ जाते हैं, वहां पे भी हम लोग को पता चल जा रहा है थोड़े बहुत जो है, वही कंपेयर करके श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इनकी पॉपुलेशन कम है, और ये हो सकता है कर्ज लेके रखे हैं, और कम पॉपुलेशन में उनके कंट्री के डेवलपमेंट, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के जो फिगर्स है वो थोड़ा चेंज है। इंडिया की रैंकिंग देखो 130 है, पेज नंबर 13 में देखो इंडिया की रैंक 130 है। श्रीलंका की रैंकिंग 76 है, 2011 की बात है। ये 2011 की बात है, और ये बुक प्रिंट कर रहे थे 2017 में, लेकिन वो 2011 वाला डाटा को लेके चल रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे भी श्रीलंका में 10 ईयर्स के हैं। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपुल एज 25 एंड अबव। 25 से ज्यादा उम्र वाले लोग कितने साल तक स्कूल गए हैं? इंडिया में 6.4, या हम 6 को छोड़ दिए, 7 ही मान लिए, 0.4 को भी राउंड अप कर दिया। इंडिया में 7 ईयर्स तक जाते हैं लोग स्कूल में ऑन एवरेज, और श्रीलंका में वो 11 ईयर्स तक जा रहे हैं। ये केवल इसलिए है कि इंडिया श्रीलंका से कम 20 गुना बड़ा कंट्री है। इंडिया की आबादी श्रीलंका से 20 टाइम्स ज्यादा होगा।
इंडिया के एक स्टेट अगर ले लेंगे तो पूरा श्रीलंका का टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा। सिर्फ तमिलनाडु ही श्रीलंका से बड़ा है। हमारे पास तमिलनाडु है, वो श्रीलंका से बड़ा है। तो हमारा इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, तो इतने बड़े डाटाबेस, इतने सारे लोगों को एजुकेशन देना श्रीलंका की बस की बात तो नहीं थी। वो भले अपने छोटे से कंट्री में वो इतना काम करके दिखा रहे हैं, लेकिन इंडिया जैसे इतने बड़े कंट्री में अगर एजुकेशन हेल्थ को अगर हमको सिक्योर करना है, वहां हमको अगर मान improve करना है, तो it is very uphill task for all of us. This is what I want to say, that in India, to improve the life expectancy or to improve the mean years of schooling and the human development rank, हमारी रैंकिंग अगर सुधारनी है, तो हमारे पॉपुलेशन ऑलरेडी श्रीलंका से 20 गुना 25 गुना ज्यादा है। ऑलराइट, सो यहाँ के एब्सोल्यूट फिगर देखेंगे तो बहुत सारे श्रीलंका से हमारे जो है लोगों को ज्यादा शिक्षा मिल रही है, ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। लेकिन टोटलिटी में अगर देखेंगे पूरे कंट्री में, तो अभी भी हमारे पास पॉवर्टी भी है, हमारे पास स्कूल नहीं जाने वाले पॉपुलेशन भी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी हम थोड़े पीछे ही है। तो वहाँ 75 है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारा भी खराब नहीं है, 69 तक पहुंच गया है। 69 ईयर्स इन इंडिया ऑल्सो we have the life expectancy। 1921 में 1920-21 में इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 25 साल था। अगर कोई 25 साल जी लिया, if the person has survived 25 years age, the entire community was very happy that that person has survived 25 years। It means on average only 25 years of age was expected। क्या होता था बचपन में ही लोग जो है जॉन्डिस से, मलेरिया से, कॉलेरा से, टाइफाइड से, लेप्रोसिस से, प्लेग से, डेंगू से, कितनी बीमारी थी इंडिया में, और इन सारी बीमारी से डेथ रेट इंडिया का काफी हाई था। हम तो आजादी से भी 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, और उस समय ब्रिटिश इंडिया था, तब भी इतना हमारे कंट्री में डेथ रेट हाई थे। तो आजादी के बाद हमने हॉस्पिटल बनाए, हमने वैक्सीन को तैयार किया, और पूरे पॉपुलेशन को पोलियो की गुट्टी पिलाई, पूरे पॉपुलेशन को सुई देके इम्यूनाइज किए, और धीरे 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 अब इंडिया की पीढ़ी जो है वो हेल्दी हो चुकी है। इंडियन जनरेशन एट प्रेजेंट इज क्वाइट बेटर ऑफ एज कंपेयर टू व्हाट इट वाज बिफोर इंडिपेंडेंस। So this is how we track the development of our own country। हमारे कंट्री में इतनी बड़ी आबादी है, तो उसको तो सही करने में टाइम लगेगा ही। और ये जो है इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, उनके रैंकिंग देखते हुए हमको जो है लगता है कहीं कि हम श्रीलंका से पीछे हैं, लेकिन इन रियलिटी 2024 में हम बहुत आगे हैं, हम बहुत बेटर है। अभी हम 5th पावर है, और अभी आने वाले 2030-2040 तक में जो है प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट का प्रॉमिस ये है कि वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो 3rd लार्जेस्ट पहुंचने के लिए केवल 2 कंट्री बचेंगे, चाइना और यूएसए। अभी हम उसी रास्ते में चल रहे हैं। हमारे यहाँ स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं, बुलेट ट्रेन एक्सपेक्टेड है, हमारे यहाँ एयरपोर्ट्स का एक्सपेंशन हो रहा है, हाईवेज का एक्सपेंशन हो रहा है, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, लोगों का अप्रोच चेंज हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें जो है जुड़े हुए आपस में, और वो कहीं ना कहीं इंडिया के ह्यूमन डेवलपमेंट के भी प्रोस्पेक्ट बढ़ा रहे हैं। आईपीएल खेलने अभी लोग इंडिया आ रहे हैं, वो लोग सपना देखते हैं कि काश हमको इंडियन आईपीएल में साइन कर दे, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। तो आईपीएल इतने डेवलप हो गए फॉर्मेट कि अभी वहाँ वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, साउथ अफ्रीकन प्लेयर जो है वो आ रहे हैं। पाकिस्तान वाले प्लेयर्स का क्या है, बैन लगा हुआ है। मुस्लिम पर बैन नहीं है, बट पाकिस्तान पर बैन है, बिकॉज political decision। Indian government and Pakistan government have some kind of issues related with terrorism। Pakistan always complain in United Nations, India always reply in United Nations, and in that the political problem is still persisting। That is why so IPL is very good opportunity for Australian, South African and West Indian players। English players have also come, New Zealand players have also come to play in Indian IPL।
It indicates India's strength in the field of cricket. और हम अभी ओलंपिक्स में भी बेटर कर रहे हैं, और हमको एशियन गेम्स में मेडल बढ़ने लगे हैं, और बहुत सारे हम होप कर रहे हैं फ्यूचर में और भी हम होस्ट करेंगे ओलंपिक्स, जूनियर ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप फुटबॉल। ये सब हमारे एम्बिशन है कि हम कहीं काश अपने कंट्री में वर्ल्ड कप फुटबॉल होस्ट कर ले, तो ओलंपिक्स होस्ट कर ले हम अपने कंट्री में। तो उस रास्ते में हम चल रहे हैं। अब एक और लास्ट टॉपिक है, तुम क्या, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। 1 मिनट बच रहा है इसके लिए। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट भी देखेंगे, आखिर कहाँ तक हम ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, सिंपल सा एक कहानी था ना, वो एक आदमी के पास एक बतख था, मुर्गी था, वो सोने का अंडा देता था, और वो आदमी रोज एक अंडा बेचता था। धीरे धीरे उसके घर की हालत सुधरने लगी, उसके सुख सुविधा बढ़ने लगे, एक दिन उसका दिमाग सठिया गया। फिर क्या हुआ तुम लोग जानते हो ना स्टोरी में। गरीब था, और एक उसके पास मुर्गी था जो सोने का अंडा देता था, और वो उसको बेचता था। बेच बेच के उसकी हालत सुधरने लगी, तो कहीं एक दिन उसका दिमाग खराब हो गया, और उसके दिमाग खराब होते ही उन्होंने जो किया, सबको मालूम है कहानी। तो यही है, हमको डेवलप करना है, किसके कीमत पे, नेचर के कीमत में। फॉरेस्ट, सॉयल, मिनरल वाटर सब तो खराब कर दे रहे हैं, हमारे पास पैसे केवल बचे रहे। इंसान इंसानियत खो दे रहा है। इंसान एक दूसरे को पैसे के अलावा और किसी नजर से नहीं पहचान रहा, जान रहा है, समझ रहा है। ये डेवलपमेंट हमें चाहिए। यही है टॉपिक, जिसको ऑफलाइन में डिस्कस करेंगे। अभी ये डिस्कनेक्ट होने वाला है। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।